السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی دوستوں اور پیارے ساتھیوں، امید کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کا کور کریں گے، ایک اہم مضمون کا ترجمہ کریں گے، اس کی تفہیم کریں گے۔ دیکھیے، السبب الحقیقی وراء کل فساد فی العالم۔ سبب جمع اسباب، اس کا مطلب ہوتا ہے ریزن، کارن، وجہ۔ حقیقی معنی حقیقی، فساد کہتے ہیں، ویسے فساد معنی بگاڑ، کرپشن، عالم معنی دنیا۔ تو دنیا میں ہر فساد کے پیچھے حقیقی سبب، حقیقی وجہ، حقیقی کارن، ٹھیک ہے۔ کون لکھے ہیں؟ یہ جعفر مسعود الحسنی الندوی، ٹھیک ہے۔ یہ ناظر عام تھے اور ایک رابطہ ادب اسلامی عالمی کے بہت یہ تھے، صدر تھے، بہت اچھے لکھتے تھے۔ اور کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اچانک ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ یہ محمد واضح رشید الحسنی الندوی کے یہ فرزند تھے، بیٹے تھے۔ ان کے ابو میرے استاذ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ان کے ابو بھی اچھا لکھتے تھے، بہت بڑے ادیب تھے، اور ان کی ایک طرح سے کمی کو یہ بیٹے پورے کر رہے تھے، لیکن اچانک جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیں، صدقہ من قال، سچ کہا جس نے کہا۔ صدقہ فعل ہے، من قال یہ فاعل ہے، جملے کے شکل میں فاعل ہے۔ ان واقع المسلمین یصد غیرهم عن الدخول فی الاسلام۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، واقع معنی صورتحال، واقع معنی صورتحال، وضع معنی حالات، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب ان آیا تو آپ کو کیا ڈھونڈنا ہے؟ جملے میں اس کا اسم ڈھونڈنا ہے اور خبر ڈھونڈنا ہے۔ تو اس کا اسم یہیں پہ ہے اور اس کی خبر یہاں ہے، جملے کی شکل میں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان آئے تو اس کا اسم اور خبر ڈھونڈنا ہے، اسی طرح کانا آئے تو اس کا اسم، اس کی خبر ڈھونڈنا ہے۔ تو اس طرح جملے کا معنی نکل جائے گا۔ فعل فاعل والا ہے تو فعل ڈھونڈنا ہے، فاعل ڈھونڈنا ہے اور مفعول ڈھونڈنا ہے، اگر فعل متعدی ہو تو معنی نکل جائے گا۔ اسی طرح مبتدا خبر ہے تو آپ کو مبتدا ڈھونڈنا ہے اور خبر ڈھونڈنا ہے، باقی ادھر ادھر آپ چھوڑ دیجئے، پھر بھی معنی نکل جائے گا۔ تو یہ ہر جملے میں آپ یاد رکھیں۔ تو ان واقع المسلمین یصد غیرہم، صد یصد نے روکنا، ٹھیک ہے، غیرہم نے غیر۔ تو مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ دوسرے کو روکتی ہے ان الدخول فی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے سے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ لو كان الاسلام مطبقا في حياتهم ومنفذا في مجتمعاتهم ومعمولا به في سلوكهم وتصرفاتهم لما تشوہت صورت الاسلام كما تشوہت اليوم۔ یہاں تک پورا جملہ ہے۔ کہتے کہ اگر اسلام مطبق ہوتا، طبق تطبیق میں تطبیق دینا کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا، لاگو کرنا۔ اگر اسلام لاگو کیا جاتا ہے زندگی میں، ان کی زندگی میں، اور نافذ کیا جاتا ان کے معاشرے میں، اور ان پر عمل کیا جاتا اپنے سلوک اور روش میں، اپنے تصرفات میں، اعمال میں، کام میں، لما تشوہت صورت الاسلام، تو اسلام کی جو تصویر ہے وہ مسخ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ شوہ کا مطلب ہوتا ہے مسخ کرنا، صورت الاسلام، اسلام کی شبیہ کو، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنا، جیسے اعداء الاسلام یشوہون صورت الاسلام، اسلام کے جو دشمن ہیں اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو شوہ کا مطلب بگڑنا، اور تشوہ معنی بگڑنا، ٹھیک ہے، خود سے، باب تفعول سے۔ تو لما تشوہت، لما یہ ماضی ہے، تو لما تشوہت تو نہیں بگڑتی صورت الاسلام، اسلام کی شبیہ، اسلام کی امیج، اسلام کی تصویر، کما تشوہت اليوم، جیسے کہ آج بگڑ چکا ہے، آج جیسے کہ اسلام کی شبیہ بگڑ چکی ہے۔ مطلب اسلام کی اگر تطبیق ہوتی، مسلمان اس پر عمل کرتی اپنے اخلاق میں، زندگی میں، تو اسلام کی وہ تصویر نہیں ہوتی جیسے کہ آج کی دنیا میں ہے۔ ولما توفرت للإعلام المعادي للإسلام والحاقد عليه فرص للتطاول عليه والنيل منه واتهامه بأنه وراء كل فتنة۔ ولما توفرت، توفرت کا مطلب ہوتا ہے فراہم ہونا، وفرا مانے فراہم کرنا، فراہم کرنا، توفر مانے فراہم ہونا۔
इलाम कहते हैं मीडिया को, मुआदी माने मुखालिफ, ठीक है। चलिए, हाकिद माने हासिद। तो नहीं फराहम होता इस्लाम मुखालिफ मीडिया के लिए और इस्लाम के हासिद मीडिया के लिए फुरस मौक़े ततावुल अलैहि, उस पर दस्त दराजी करने का। ततावला अलैहि कहते हैं किसी चीज़ पर बड़ा बनने की कोशिश करना, ठीक है। और नाइल मिन है, और उसकी आबरू को पामाल करने की मौका नहीं मिलता। नाला मैंने पाना, नाला मिन हो मैंने किसी की इज्जत एक तरह से उछालना, ठीक है, हद की इज्जत करना। व इत्तिहाम ही, और इल्ज़ाम लगाने का मौका न मिलता। बेअन्नहु वरा कुल्ल फसाद, फितना के हर फितने के पीछे है। व वरा कुल्ल फसाद, और हर फसाद के पीछे। व वरा कुल्ल उनफिन, हर तशद्दुद के पीछे है। व वरा कुल्ल तमर्रुदिन, और हर सरकशी के पीछे है, ठीक है। ये इस्लाम का आज ये इतराज़ है और इल्ज़ाम है कि मुसलमान, या फिर यूँ कहे इस्लाम का दुनिया में जो भी फसाद है उसके पीछे इस्लाम का हाथ है, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों को इस तरह का तालीम देते हैं। इसलिए आमतौर पर देखेंगे कि मुस्लिम दुनिया में और जहाँ कहीं भी है वो बदनज़मी फैली हुई, करप्शन, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, तो इन्हीं की वजह से है। यह इस्लाम नौज़ुबिल्लाह इसको प्रमोट करता है। ये इल्ज़ाम लगाते हैं कौन? ये गैर मुस्लिम लगाते हैं, इस्लाम के दुश्मन मुखालिफ मीडिया। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि मुसलमान इस्लाम पर अमल नहीं करें। लेकिन अनल मुस्लिमीन अल्लज़ीना नक़िफ़ु फ़ी वजहिल मुक़बिलीन अलल इस्लाम व रग़ीबना फ़ीहि मुत्तजिहीन इलैहि बिलक़िराअति अन्हु व तअर्रुफ़ अलैहि, कि नहनुल मुस्लिमीन, कि हम मुसलमान, ठीक है। नहनु के बाद अगर कोई इस्म आता है तो वो मनसूब होता है, ठीक है। तो नहनुल मुस्लिमीन, जैसे कि यहाँ है, हम मुसलमान, अल्लज़ीना, जो कि खड़े हैं इस पर, इस्लाम की तरफ मुतवज्जे होने वाले के सामने, और उसमें रग़बत लेने वाले के सामने, और उसकी तरफ मुतवज्जे होने वाले के सामने, पढ़ाई के ज़रिए उसके बारे में, और उसके इस्लाम के तारुफ़ के ज़रिए, यानी इस्लाम की तरफ जो मुतवज्जे हो रहे हैं पढ़ के, उसके तारुफ़ के ज़रिए उसके सामने हम सबसे खड़े हैं रिकॉर्ड बन के। लौ कानल मुस्लिमूना मुमस्सिलीना बितालीमिल इस्लाम, अगर मुसलमान नुमाइंदगी करने वाले होते इस्लाम की तालीमात के ज़रिए, ठीक है। वलौ कानू यसीरून अलल मनहज, अगर वो लोग चलते, सारा माने चलना, मनहज माने तरीक़ा, अगर वो चलते मुसलमान उस तरीक़े पर, अल्लज़ी मनहहु, जो रसूलुहुम, जो दिया है उसको उनके रसूल ने। लौ कानू अला नहविल लज़ी यंबग़ी, अगर वो चलते उस तरीक़े पर, नह माने तरीक़ा, उस तरीक़े पर, अल्लज़ी यंबग़ी अन यकूनू, जिस पर मुनासिब है कि उस पर हो। वलौ कानू मुमस्सिलीना हक़्क़न बिहक़ाइक़िल इस्लाम व मनाहिजी व आराई व सलूकी, और अगर वो लोग नुमाइंदगी करने वाले होते हकीकी तौर पर इस्लाम के हक़ानियत की, उनके मनहज की, उनके आरा की, उनके सलूक और अखलाक की, ला दखलत औरुबा कुल्लुहा फिल इस्लाम, तो पूरा यूरोप इस्लाम में दाखिल हो जाता, पूरा यूरोप मुसलमान हो जाता, ठीक है। यानी अगर अभी का जो मुसलमान है वो इस्लाम पर अमल करते हैं, उनके ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक होती, तो पूरा यूरोप मुसलमान हो जाता है। लेकिन देख रहे कि नहीं, मुसलमान ही क्या कहते हैं, गलत है, उनके अखलाक सही नहीं है, वो भी बेईमान है, उनके अंदर भी ईमानदारी नहीं है, तो ये समझते हैं कि नहीं, शायद ये लोग भी सही नहीं है, या इनका मज़हब ही सही नहीं है। देखिए, इन औरुबा अलियम वसलत रगमा रुक़ी है अलमादी, एक एक करके हम पहले लफ्ज़ बता देते हैं। औरुबा मैंने यूरोप, वसा मैंने पहुँचना, रगमा मैंने बावजूद, रुक़ी अलमादी मादी तरक्की, रुक़ी सिनाई मैंने इंडस्ट्रियल तरक्की, ठीक है, सनाती तरक्की, इल्मी मैंने साइंसी तरक्की, ठीक है, इब्दा मैंने ईजाद, इंताज मैंने प्रोडक्शन, इक्तिशाफ मैंने डिस्कवरी, इख्तिरा मैंने ईजाद करना, सिनाअतुल इसलिहा मैंने असलहा बनाना, ठीक है। अब क्या है, और बस बहसन मैंने तलाश करना, आना माने झेलना, दो चार होना, ठीक है। ज़िक माने तंगी, कावतन माने परेशानी, कलक माने बेचैनी। कहते यूरोप आज
रग वसलत पहुँच चुका है, रगमा वो रुकियल तरक्की अपने मादी तरक्की के बावजूद, अपनी सनाती और इंडस्ट्रियल तरक्की के बावजूद और अपनी साइंसी तरक्की के बावजूद, रगम तक़द्दुम है फिल इब्दाई वल इंताज, और अपने तरक्की के बावजूद किस में, इब्दा माने इख्तिरा, इसमें क्रिएशन में, नई नई चीज़ जो पैदा करते हैं उसको बोलते हैं इब्दा, और इंताज प्रोडक्शन में, और डिस्कवरी में, और ईजाद में, वसीनातिल असलाह बिकुल्ल अनवा, हर तरह के हथियार बनाने के मैदान में तरक्की के बावजूद, और तौफीर अदावत राहत बिकुल्ल अशकालिहा, और हर तरह की राहत के असबाब और सामान फराहम करने के बावजूद पहुँच चुका है यूरोप कहाँ, इला दराजतिन मिनल हैरत वज़िया, वो हैरत और परेशानी के दर्जे तक पहुँच चुका है यूरोप। जअलतहा तबहसु अन तरीक़िल खलास मिन कुल्लि मा युआनीह मिन अज़्ज़िक़ वल काबत वल, जिसने जअलतहा ना जिसने उसको बना दिया है कि वो तलाश करे क्या, खलासी का रास्ता, निकलने का रास्ता हर उस चीज़ से जो वो झेल रहा है, दो चार है, तंगी में से और परेशानी में से और बेचैनी में से। ठीक है। काब कहते हैं जो परेशानी, ऐसी परेशानी जो चेहरे पे दिखे, और अगर दिल में दिखता है परेशानी तो उसको बोलते हैं हुज़्नुन। हुज़्न माना गम, जो आपका ज़मीर में हो, दिल में हो, दिखे ना। लेकिन कहावतन कहते हैं ऐसी परेशानी जो आपके चेहरे से दिखे। ये दोनों में फ़र्क है, कईब और हज़ीन। इन हज़ल वाक़ अल्लज़ी नईशुल यौम, कहते ये सूरत हाल जिस पर हम लोग क्या कर रहे, जी रहे हैं आज, यजअलुल मुआरिज़ीना, वो मुखालिफिन को बनाते हैं, यक़ुलून यानी कहने पर मजबूर करते हैं, इन्नहु लम यउद लिल इस्लाम रिसालतुन युक़द्दिमुहा इलल बशरिय्या, कहते इस्लाम के पास कोई पैगाम नहीं है जिसे वो पेश करे इंसानियत के सामने। वला यस्ततिउ अन युसाइरा रक़बल हज़ारा, और ना ही उसके पास ताकत है कि वो तहज़ीब के काफ़िला के साथ चले। ठीक है। वला यस्ततिउ अन यसुद्दा मुक़्तज़ायातिल अस्र व मुततल्लबातिही, दोनों का मतलब होता है तकाज़े, लिख लीजिए। और ना ही वो ताकत रख सकता है, यानी ताकत रखता है इस्लाम कि वो ज़माने के तकाज़े और उसके मुतालबात को पूरा करे। सद्दा माने बंद करना, वैसे यहाँ में पूरा करना। यक़ुलून, वो लोग कहते हैं, कानत लहू रिसालतुन फ़िल माज़ी, इस्लाम का पैगाम था माज़ी में, लाकिन बशरियत तजावज़तिल यौम अनिल मदा अल्लज़ी यस्तमिउ फ़ीहा लिहाज़िर रिसाला व यअमलु बिहा, लेकिन इंसानियत तजावुज़ कर चुकी है आज उस हद से, अल्लज़ी यस्तमिउ फ़ीहा, जिसमें वो सुने इस पैगाम को और उस पर अमल करे। असबहत हाज़िर रिसाला अल-यौम तारीख़ियतुन व रज़िय्या, और आज जो है पैगाम एक तारीख़ी बन चुका है और क़दामत परस्त बन चुका है, यानी पुराना बन चुका है। वलम यउद लिल इस्लाम मा युक़द्दिमुहु लिल बशरिय्यति अल-आन वला बअदल आन, और ना इस्लाम के पास कोई ऐसी चीज़ है जो पेश करे इंसानियत के लिए अभी, ना अब के बाद। व युसाइदुल जहलतु बिल इस्लाम फ़ीमा यज़अमुनहु वाक़िउल मुस्लिमीन, युसाइदु फ़िल है, अल जहला ये मफ़ऊल है, और ये वाक़िउल मुस्लिमीन ये फ़ाइल है एक्चुअली। और मदद करता है इस्लाम से नाआशना लोगों की। ठीक है, जो कुछ वो दावा करते हैं मुसलमान की सूरत हाल, यानी मुसलमान की सूरत हाल जो है एक तरह से तस्दीक कर देते हैं किसकी, जो इस्लाम के बारे में सोचते हैं। इन दुअल इस्लामिया वमा तनशब फ़ीहा मिनल हुरूबिल अहलिया, नशब माने पैदा होना, जंग जैसे भड़कना। ठीक है, तो कहते हैं इस्लामी ममालिक या मुस्लिम ममालिक, जो कुछ उसमें पैदा हो रहा है, खाना जंगी, अहलिया माने खाना जंगी, सिरात दाखिलिया और दाखिली कशमकश, और सिदामात बैन तवाफ़िल मुख्तलिफ़न मुंतबियत इल इस्लाम, और इस्लाम से निस्बत रखने वाले मुख्तलिफ गुरूह के दरमियान टकराव, वल खिलाफत दामिया बैन अल हराकात वल मुनज़्ज़मात अद्दाइया इल इस्लाम, और इस्लाम की तरफ बुलाने वाले तंजीमों और तहरीकों के दरमियान खूनी इख्तिलाफात और झगड़े, वल इश्तिबाकात बैन अजहिज़तिल अम्न व अम्मतिन नास, और सिक्योरिटी एजेंसी के दरमियान
और आम लोगों के दरमियान झड़पें, ठीक है। व तमर्रुद शुअब अलल हुकूमत, और हुकूमत की अवाम की बगावत हुकूमत के ख़िलाफ़। व इस्तिख़दाम रिजालिल हुक्म अनवाअन मुख्तलिफ़त मिनल उन्फ़ व तअज़ीब, और हुकूमत के आदमियों का इस्तेमाल करना मुख्तलिफ़ तरह के तशद्दुद और अज़ाब, लिक़मअ मन युतालिबूनहु, उसको इस्तेहसाल करने के लिए, क़लाक़ुमा करने के लिए, बेखुनी करने के लिए, जो मुतालबा करते हैं अपने हक़ूक़ का पुरअमन तरीक़े से, बितरीक़तिन सिल्मियतिन, पुरअमन तरीके से। वमा युअद्दी कुल्लु ज़ालिका इलैहि मिन अद्दिमार व तशरीद व इराक़त अद्दिमा व सिलसिलत मिन अल-इरक़ाताक़, और जो कुछ वो चीज़ें ली जाती है, यानी सबब बनता है तबाही का, तशजीला वतनी का, खून बहाने का, सिलसिलत मिनल इतिक़ालात, और गिरफ़्तारियों के सिलसिला का, और एतमाद फांसियों के सिलसिले का, सौरात बगावत और इनक़लाबात के सिलसिले का, व इसक़ातिल अंज़ुमात, और निज़ाम और सिस्टम के गिरने का, व हालात अदमिल इस्तिक़रार, और अदम इस्तिहकाम के हालत का, ठीक है। इस्तिक़रार कहते हैं इस्तिहकाम को, और अदम इस्तिहकाम के हालत का, वल-ग़लाइल फ़ाहिश, ज़बरदस्त महंगाई का, वल-फ़क़्र, और फ़क़्र और बेरोज़गारी का, ठीक है। फ़यहतमुल इस्लाम बिकुल्लि ज़ालिका, तो इस्लाम हर उस चीज़ का एहतमाम करता है, ठीक है। व युक़ालु, और कहा जाता है, फ़युत्तहमु, यहतमु नहीं, फ़युत्तहमुल इस्लाम बिकुल्लि ज़ालिका, तो हर उस चीज़ के ज़रिए से इस्लाम को मुत्तहम किया जाता है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक में जो लड़ाई होती है, बगावत होते हैं, दंगे होते हैं, तो इसके ज़रिए से इस्लाम को मुत्तहम किया जाता है। क्यों? देखिए, मुसलमान ही ख़राब है, इस्लाम ही ख़राब है, क्योंकि इन लोगों को चलना नहीं आता, इसको ज़िंदगी गुजारना नहीं आता, इसको हुकूमत चलाना नहीं आता, इसको दुनिया में रहना नहीं आता। तो ये सब देख के मुसलमानों की जो हालत है आज की मुस्लिम दुनिया की, वो हालत देख के वो लोग इस्लाम को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। वयुक़ाल, कहा जाता है, इन्नल इस्लाम हुवा सबबुल वहीद लिमिस्ल हाज़ल वाज़ा, कि इस्लाम ही, ठीक है, वाहिद वजह है इन हालत का, अल्लज़ी यमुर्रु बिहिल आलमुल इस्लामी, जिससे आलम इस्लामी गुज़र रहा है। बैनमल हक़ीक़त तक़ूल, जबकि हक़ीक़त कुछ अलग है। क्या हक़ीक़त? जबकि हक़ीक़त कहती है, इन्न इब्तिआदल मुस्लिमीन अनिल इस्लाम, कि मुसलमानों की दूरी इस्लाम से, सैतरतुल क़ुव्वाल कुब्रा अल मुआदिया लिल इस्लाम अलल आलमिल इस्लामी, और इस्लाम मुखालिफ बड़ी ताकतों का कब्ज़ा आलम इस्लामी पर, ठीक है। व मुआमरतुहा, उनकी साजिश व खुततुहा, और उनकी प्लानिंग, लिखल्क़ अदा हालात अदमिल इस्तिक़रार, अदम इस्तिहकाम की हालत को पैदा करने के लिए, व इफ़शालिल हुकूमत, और हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए, व इसारतिल फ़ौज़ा, और बदनज़मी और शोरिश भड़काने के लिए, व इशआलिन नार नीरान, और उस आग को भड़काने के लिए, अल्लती की तहरीक कुल्ला रुतबिन व याबिस, जो हर सूखी और गीली चीज़ को जला दे अपने एजेंडों के लिए, अपने वफादार एजेंडों के लिए, वल खवाना, और उन खाइन और गद्दारों के लिए, अल्लज़ीना यस्तअमिलूनहुम, जो लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, लितहक़ीक़ अहदाफ़िहा, अपने मक़ासिद के हुसूल के लिए, वल इस्तिलाई अला अमाकिन हस्सासिया, और हस्सास जगहों पर कब्ज़ा करने के लिए, इस्तिला अला माने छा जाना, ठीक है, उस पर कब्ज़ा करने के लिए। युअद्दी कुल्लु ज़ालिका, ये सारी की सारी चीज़ें ये वजह बनती है, इला मा युआनिहुल आलम, हर उस चीज़ का जो इससे आज दुनिया दो चार है, जिससे आज की दुनिया दो चार है। किस में से? अदम इस्तिहकाम में से, हलाकत में से, बर्बादी में से, तंगी में से, और परेशानी व बेचैनी में से, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो कुछ हो रहा है, ये वजह एक्चुअली मुसलमान, ये इस्लाम मेन वजह नहीं है, एक्चुअल में है। एक तो मुसलमानों का इस्लाम से दूरी है, और दूसरा मुसलमानों के जो ममालिक है उस पर जो है इस्लाम मुखालिफ दुश्मनों का गलबा है, क्योंकि वही लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्या कर इसको बदअमनी को फैलाने के लिए,
اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ اس کے مفاد کے تحت چلے، اور بھلے ہی وہاں بدامن پھیلے، کچھ نقصان ہو مسلمانوں کا، دنیا کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ مغرب کی چال ہے، اور یہ اس کا کام بھی ہے۔ یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور سے عالم اسلامی میں، اس کی مین وجہ کون ہے؟ مین وجہ مغرب ہے، اور خاص طور سے دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں، حکومت کا بدلنا اور بغاوت کا آنا، انقلاب ہونا، سب اس کے پیچھے انہی لوگ کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ لوگ عدم پیسہ دیتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہو، اور ان کے کیا بولے ایجنٹ بن کے رہے، اور ان کے مفاد کے لیے کام کرے۔